Welcome to the Doubtbusters. In this video, today we will learn the use of to be. To be means होना या बनना. इसे हम यूज करते हैं होना या बनना के लिए. In to be can be divided into three parts: is, are, was, were, and will, shall be. Is, are we use in present tense. Was, were we use in past tense, and will, shall be we use in future tense. So let's get started and understand deeply about all these three things. Is, as you can see, we use in present. Okay, to be, again, hona ya banna. Is we use with he, she, it, name, singular. Are we use with you, we, they, plural. And am we use with only I. So if we start a rule, the basic rule is subject, is, object. I've told you how we use is, am, are. For example, I say she is a dancer, which means वह dancer है. Again, I'm telling you, to be means होना या बनना. Is, are we use in present? The same we can use in the past tense, was, were, which means कोई इंसान कुछ था या कहीं पर था. Was we use with I, he, she, it, name, singular, whereas we use were with you, we, they, plural. Rule saying subject object remains the same. We change only was, were. If I say she was a dancer, which means वह dancer थी. अगर हम कहते हैं she is a dancer, means वह dancer है. If I take a negative sentence, we can say my uncle is not a barber. Barber means होता है नाई. मेरे uncle barber नहीं है. Okay, you can see not. See, there are many students who are confused in not. कि सब not कहाँ पे लगाएं? For the time being, you need to understand one thing. आप not लगा सकते हो third place पे. First, second, third. At third place, you can put not blindly, and if it changes in the future, I'll let you know. Okay, same we use in a negative sense. My uncle was not a barber, which means मेरे uncle barber नहीं थे. Okay, let's take interrogative, then we'll go to the future. इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि आप सब क्वेश्चन करते हो. आप इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन करना. सो सेम थिंग इन इंटेरोगेटिव वी आस्क क्वेश्चन. और इंटेरोगेटिव का सिंपल रूल क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो उठ के बाद में चला जाता है, और जो इज़ेमार होता है या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ के पहले आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आर यू अ टीचर, विच मीन्स क्या तुम टीचर हो. यहां पे ये जो आर आ गया पहले, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन को. क्या तुम टीचर हो, क्योंकि हम इज़ेमार की बात कर रहे हैं. अगर हम बात करेंगे was were की और हम कहेंगे were you a teacher, which means क्या तुम टीचर थे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, जिसमें हम क्या के साथ साथ नहीं का भी यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आर योर पेरेंट्स नॉट डॉक्टर्स. आप बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर्स नहीं हैं. नॉट थे. थे हम किस में यूज करेंगे? was एंड were में. इफ आई यूज were your parents not doctors, which means क्या तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर्स नहीं थे. That's great. Let's move on to the last type of to be, that is will, shall be. We will understand a little bit deeper because यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का. Americans are only using will, but British are also using shall. Americans are not using shall. Whereas if I talk about Canadians, Australians, they are also not using shall. Okay, they all are using will. However, in British English, some people are using shall. You can also use shall in Indian English as well. Americans, as I've told you, use कर रहे हैं will सभी के साथ. चाहे वो I, you, we, they, सबके साथ क्या use करते हैं? Will. But British are using shall with I and we only. I और we के साथ ही shall का यूज करते हैं. कौन यूज करते हैं? Yes, Britishers. Americans are not using shall. और जो बचा will, Britishers उसके साथ यूज करते हैं बाकी बचे हुए he, she, they. Okay, so let's move on. Okay, jump on to the rules and understand it. See, the rule is very simple. Subject जो आपका काम करता है, object जो हम काम की बात करेंगे या फिर कोई, जैसे हमने पढ़ा है होना या बनना. Will, shall be. I told you how we use will and shall. Will, American, British are using shall. If I'm saying she will be a dancer, वह dancer बनेगी. मैं कहता हूं she is a dancer, वह dancer है.
शी वॉज अ डांसर, वह डांसर थी, और शी विल बी अ डांसर, वह डांसर बनेगी। ओके, लेट्स जंप इनटू द नेगेटिव। अच्छा, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो बी का आपको एक खास ख्याल रखना है। विल शैल बी में विल शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। यू आर नॉट यूजिंग नॉट आफ्टर विल बी नॉट। आप विल बी नॉट नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल विल नॉट बी अ बार्बर। मेरे अंकल बार्बर, बार्बर अगेन मीन्स नाई, नाई नहीं होंगे या फिर बनेंगे। ओके, इंटरोगेटिव जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो सेम चीज विल शैल आगे आ जाएगा। सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट विल और बी के बीच में आएगा। विल यू बी अ टीचर? विल यू बी अ टीचर मीन्स क्या? यू मीन्स बी, तुम टीचर बनोगे। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्या प्लस नहीं। आप क्या के साथ क्या यूज करोगे? नहीं का भी। जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, क्या वह यह नहीं बनेगा, क्या वह यह नहीं होगा, सेम। विल योर पेरेंट्स नॉट बी डॉक्टर्स मीन्स क्या तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर्स नहीं होंगे या फिर बनेंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, द लास्ट एग्जांपल। विल शैल, आप देख सकते हो आई के साथ मैं विल भी लगा सकता हूं और शैल भी लगा सकता हूं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू यूज शैल और यू वांट टू यूज विल। अगर आप शैल का यूज करोगे दैट बिकम्स ब्रिटिश इंग्लिश, अगर आप विल का यूज करोगे दैट बिकम्स अमेरिकन इंग्लिश। विल आई नॉट बी एन IAS ऑफिसर? क्या मैं IAS ऑफिसर नहीं बनूंगा? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इज एम आर, वॉज वर्ड एंड विल बी। इज एम आर हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट में। वॉज वर्ड हम कब यूज करते हैं? पास्ट। एंड विल शैल भी हम यूज करते हैं फ्यूचर में। लेट्स रिपीट अगेन। इज एम आर मैं हूं, वॉज वर्ड मैं था, विल बी मैं बनूंगा। I hope you have understood all 3 lessons. And if you have liked this video, please do share with your family members, and also ask them to like the video and subscribe to my channel. Thank you so much.